लेट अस कंटिन्यू विद द सरफेस टेंशन. दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ सरफेस टेंशन, जहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि सरफेस टेंशन कंप्लीट हो जाए. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल to a radius of 1 centimeter. So in our previous lecture we already completed one sum using the formula T is equal to F by L. Now we are going to continue this particular sum and we will use some other formula. So calculate the work done in blowing a soap bubble to a radius of 1 centimeter. So let's first write out the given data that is provided to us. So in given, they have given as radius of the bubble to be 1 centimeter. It is 1 into 10 raised to minus 2 meter. Try to convert every possible unit into SI unit. Now moving to the next particular topic. Okay, the surface tension of the soap solution, that is capital T, is also given and it is 2.5 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. Okay, sometimes they give the surface tension in terms of dyne. So for that particular case you should remember that one dyne is nothing but 10 raised to minus 5 Newton. You have to remember this particular thing, right? One dyne is 10 raised to minus 5 Newton. Okay, so now we have got surface tension. Now what do we want to find out? We want to find out work done. So the thing that we need is work done. If you remember the definition of surface tension, so you will remember the formula. So definition of surface tension is work done या फिर surface energy per unit area. Therefore you can directly write that work done is nothing but T into dA. Now the only problem is that we should calculate dA, that is the area. Okay, so first thing that we should calculate is dA. Now dA is nothing but change in area. Let's say final area is A and initially there was no area because we haven't blown any bubble initially, so A minus 0. So what is the area of that particular bubble? It would be equal to 4 pi r square, because we are talking about surface area over here and sphere has a surface area 4 pi r square. Now let's put those values over here. So we get dw is equal to T into 4 pi r square. But don't you forget, we are talking about soap bubble. किसकी बात कर रहे हैं? सोप बबल. तो बबल के अंदर भी एयर होती है, बाहर भी एयर होती है. इफ वुड हैव बीन ड्रॉपलेट तो मेरा फॉर्मूला यही रहता, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एयर, सो दिस पर्टिकुलर थिंग बिकम्स 2. सो वी गेट समथिंग लाइक दिस 2TdA. सो मेरे फॉर्मूला में भी 2 आ जाएगा. नाउ लेट अस पुट ऑल द वैल्यू दैट आर प्रेजेंट टू अस. सो 2 इंटू सरफेस टेंशन इज 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, and radius is given as 1 into 10 raised to minus 2. So once we put all these values we will get the final answer. यहाँ पे ट्रिक यही थी कि अगर हम लोग एयर बबल यूज करते हैं तो एयर बबल के लिए एयर 2 साइड होती है. अगर इसी के जगह मैंने ड्रॉप यूज किया होता तो एक ही आता सरफेस टेंशन. ओके, सो दिस इज द आंसर दैट वी हैव गॉटन. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक. अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोगों को क्या होता है पहले वो समझते हैं. ओके, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, मतलब ये एंगल होता है लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस के बीच का, इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेजर्ड विद इन द लिक्विड. थोड़ा सा tough definition है. I agree. I will try to explain it to you. I'll try to explain it to you and make it easy for you. देखो क्या करता है, ये मैंने सॉलिड का सरफेस कंसिडर किया. सॉलिड का सरफेस मतलब सर, सो देख अगर तेरे को ये एरिया दिख रहा है, मैंने ये एरिया कट किया है और ये कट करके इसको जूम किया है. कैन यू सी व्हाट आई डिड ओवर हियर? तो मैंने बेसिकली ये जो इतना छोटा सेक्शन था ना, ये ब्लैक में जो अभी मैंने बनाया, उसको कट किया और बाजू में रखा है. तो कैन यू सी जो तुम्हारा पैटर्न है, जो फ्लूइड का पैटर्न है, यू गेट समथिंग लाइक दिस, है ना. दिस इज व्हाट वी गेट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज कॉन्केव सरफेस. कॉन्केव, है ना. तो कॉन्केव सरफेस को समझो तुम लोगों ने एक टेंजेंट निकाली. ओके, लेट्स ड्रॉ अ टेंजेंट. कैन यू सी, ये सरफेस को टेंजेंट हुआ कॉन्केव सरफेस को, तो ये टेंजेंट के साथ सॉलिड का सरफेस जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. क्या बोला मैंने क्या किया, पहले सरफेस लिया सॉलिड का, उसके बाजू में लिक्विड का जो भी
प्रोफाइल था वो बनाया, मेनिस्कस बनाया, कॉन्केव मेनिस्कस बनाया, फिर कॉन्केव मेनिस्कस को क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। अभी मैं एंगल की बात करने वाला हूँ, ध्यान से देखो और समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो सॉलिड के साथ इस टेंजेंट के दो एंगल आते हैं, एक होता है ये थीटा, बट हम लोग इस थीटा की बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं किसी और थीटा की। हम लोग वो एंगल देखते हैं, ध्यान से सुनो, हम लोग वो एंगल देखते हैं जो पानी के अंदर है। अभी लॉजिकली स्पीकिंग ये थीटा और ये थीटा सेम होगा मैथमेटिकली, राइट, बट स्टिल बाय डेफिनेशन वी लुक फॉर द एंगल दैट इज बिलो द लिक्विड सरफेस, बिलो द लिक्विड फ्री सरफेस। लिक्विड सरफेस मतलब लिक्विड का जो फ्री सरफेस है उसके नीचे वाला एंगल देखते हैं। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं समझो मर्क्यूरी की बात करूं, या फिर ऐसा कोई सरफेस, ऐसा कोई फ्लूइड जो कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्रिएट करता है, बेस्ट एग्जांपल इज मर्क्यूरी, सो यू गेट समथिंग लाइक दैट, यू गेट कॉन्वेक्स मेनिस्कस। हाँ, दूसरी साइड पे भी होगा एंड दूसरी साइड पे भी बीकर होगा, समथिंग लाइक दिस। बट इसको अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ सो आई गेट समथिंग लाइक दिस, बराबर। सो दिस इज द टेंजेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी ये टेंजेंट का सॉलिड सरफेस के साथ एंगल कितना हो रहा है इन द लिक्विड, इन द लिक्विड देखोगे तो ये एंगल हुआ। सो दिस इज द थीटा वी आर टॉकिंग अबाउट। तो तुम लोगों ने नोटिस किया जब मैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस की बात करता हूँ तो मुझे जो एंगल मिलता है वो मिलता है ऑब्ट्यूज, बड़ा एंगल मिला ना। वेरएज अगर तुम लोग ने यहाँ पे बात की तो मुझे एंगल क्या मिला, अक्यूट। तो कॉन्केव मेनिस्कस के केस में एंगल मिलता है अक्यूट, कॉन्वेक्स मेनिस्कस के केस में एंगल मिलता है ऑब्ट्यूज। ओके, ये चीज़ याद रखना। अभी डेफिनेशन को फिर से समझते हैं। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा क्या होता है, बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, वो तो होता ही है। तो ये सब लिखा नहीं तो भी चलेगा, डायरेक्टली इज डिफाइन लिखो, नो इशू। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द फ्री सरफेस। हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया था, याद है? तो टेंजेंट ड्रॉ टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड का सरफेस एंड टेंजेंट के बीच का एंगल होता है, बट ये एंगल कहाँ मेजर करना है हम लोगों को, मेजर्ड विद इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक। तो बेसिकली हम लोगों को एग्जैक्टली कॉन्केव मेनिस्कस में कैसे एंगल मिलता है वो हमें स्टडी करना है। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, लेट्स से कि कॉन्केव मेनिस्कस फॉर्म कैसे होता है। व्हाई डोंट आई क्रिएट अ डायग्राम just like them? Okay, so I have created a diagram. Then let's take something like this. ऐसा मैंने क्या किया है, एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया है लिक्विड ड्रॉपलेट का। अभी कैसे ये जो है ना, जो डॉटेड लाइन से बना है, दैट इज़ नथिंग बट स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और ये अंदर की तरफ जो मॉलिक्यूल है ना मेरा, जो तुम लोग को दिख रहा है, दैट इज़ नथिंग बट ए, जो इन्होंने भी बनाया देखो, और अपना भी है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज ए। सो दिस इज़ ए आई एम टॉकिंग अबाउट। थोड़ा सा सेंटर में बना देते हैं। ओके, नाउ सी दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल फील टू काइंड ऑफ फोर्सेस, क्योंकि इसके ये साइड में ना यहाँ पे लिक्विड है और ये है सॉलिड। तो और मॉलिक्यूल किसका है, मॉलिक्यूल लिक्विड का है। तो याद रखना इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट होंगे, एक होगा एडेसिव फोर्स, एक होगा कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स किसके बीच में होगा, सॉलिड एंड लिक्विड का मॉलिक्यूल, है ना। तो अभी विजुअलाइज करो और अंडरस्टैंड करो कि मैंने एडेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट कंसिडर किया। मतलब मैंने ऑब्वियसली एडेसिव फोर्सेस बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना, जैसे कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और हर एक मॉलिक्यूल का डायरेक्शन होगा ना, मतलब बहुत सारे एडेसिव फोर्स है। बट सारे फोर्स हम लोग को कंसिडर नहीं करने हैं। हमें क्या कंसिडर करना है, हमें सिर्फ एक रिजल्टेंट फोर्स कंसिडर करना है। उस रिजल्टेंट फोर्स को हम बोलेंगे एडेसिव फोर्स। ओके, तो मान के चलो इसको मैंने किससे डिनोट किया, ए से डिनोट किया। व्हाट डू वी रियलाइज ना कि एडेसिव फोर्स वी गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, लेट्स से दिस इज AP। लेट्स से कि AP इज नथिंग बट आवर एडेसिव फोर्स या फिर रिजल्टेंट एडेसिव फोर्स। दिस इज वेरी गुड। सो लेट्स कॉल रिजल्टेंट एडेसिव फोर्स। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर फोर्स। अभी अगर देखोगे तो याद करो, यहाँ पे पानी था अपना या फिर फ्लूइड था, कोई भी लिक्विड था। तो इस लिक्विड के बीच में, और ये लिक्विड का ही मॉलिक्यूल, तो कोहेसिव फोर्स होगा। सो यू विल नोटिस समथिंग लाइक दिस। लेट्स मेक समथिंग लाइक दिस। लेट्स से दिस इज AC। अच्छा, उन्होंने AC लिया है तो मैं भी AC लेता हूँ।
तो अदरवाइज आई वॉज थिंकिंग ऑफ कॉलिंग इट एज सम अदर वैल्यू, बट लेट्स से ये AC है अपना। अभी ध्यान से देखो और समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो AC क्या है? अपना रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करनी है अपने को। तो अपना रिजल्टेंट एडेसिव फोर्स हो गया, कोहेसिव फोर्स हो गया। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज क्रिएट अ पैरेललोग्राम। सो इफ यू क्रिएट अ पैरेललोग्राम यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, है ना, थोड़ा बहुत ऐसे मिलेगा। फिर जब ये मिलता है देन आई वांट यू टू ड्रॉ द रिजल्टेंट R। क्या ड्रॉ किया मैंने? रिजल्टेंट R। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। मैंने पहले रिजल्टेंट एडेसिव फोर्स निकाला, रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स निकाला, एंड देन यू रियलाइज समथिंग लाइक दिस कि इफ यू मेजर AP एंड मेजर AC यू रियलाइज दैट AP इज ग्रेटर देन AC। ऐसा कहाँ पे होता है पता है? देर आर सम फ्लूइड जहाँ पे एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स। ओके, सो you can say that AP is greater than AC. Okay, adhesive force is greater than cohesive force, so you can write that। हाँ, बट ऊपर ऑलरेडी लिखा है तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करना है? रिजल्टेंट ड्रॉ किया। अभी रिजल्टेंट ड्रॉ करने के बाद रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर फोर्स बनाओ। सी, ये और ये परपेंडिकुलर नहीं है, मुझे रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर बनाना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर from resultant for okay, so this is my perpendicular and this will be known as tangent। तो अगर तुम लोग देखोगे तो रिजल्टेंट एंड टेंजेंट के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और अभी देखो ये टेंजेंट किसको टेंजेंट था? ये टेंजेंट था फ्री सरफेस को। तो मैं टेंजेंट को पकड़ के एक फ्री सरफेस क्रिएट करता हूँ। आई होप तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या करने जा रहा हूँ। सो इफ यू क्रिएट टेंजेंट you get something like this and this is how you get this profile। I'm talking about this profile। समझ रहे हो कैसे प्रोफाइल मिला मुझे? तो ऐसे टाइप में ये अपना डायग्राम क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ पे तुम लोगों ने क्या नोटिस किया कि AP इज़ ग्रेटर देन AC, बराबर ना? तो जब AP इज़ ग्रेटर देन AC होता है तो तुम लोगों ने एंगल नोटिस किया क्या? ये ज़रा एंगल नोटिस करो। टेंजेंट और सॉलिड के साथ जो एंगल होता है, दिस पर्टिकुलर एंगल इज़ नथिंग बट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट? तो पानी दिखना चाहिए या फिर लिक्विड दिखना चाहिए, इसलिए थोड़ा डॉटेड बना देता हूँ, अच्छा दिखेगा। सो दिस इज व्हाट यू गेट। सो दिस इज थीटा। व्हाट डू यू नोटिस ओवर हियर? इन कॉन्केव मेनिस्कस दैट एंगल थीटा इज नथिंग बट एक्यूट, है ना? तो थीटा क्या मिल गया तुम लोग को? एक्यूट मिल गया। और जिस पर्टिकुलर केस में थीटा एक्यूट आता है वो फ्लूइड्स, वो लिक्विड विल पार्शली वेट द सॉलिड। मतलब वो पूरी तरह वेट नहीं करते सॉलिड को, थोड़ा बहुत वेट कर देते हैं। पार्शली वेट द सॉलिड। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आता है वो है केरोसिन। सुना है आपने केरोसिन? आपने देखा होगा, कभी ट्राई करके देखो। केरोसिन जो है ना वो थोड़े बहुत अमाउंट में चिपक जाता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है केरोसिन इन अ ग्लास बॉटल, बट पूरा का पूरा नहीं चिपकता जैसे वाटर चिपकता है। नाउ लेट्स डिस्कस कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो वही प्रोसेस में करने वाला हूँ मैं, सेम डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। ओके, सो आई ट्राई टू ड्रॉ द सेम डायग्राम। इट शुड बी ड्रॉन विथ, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा सरफेस। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ओके, ये हो गया सरफेस, सॉलिड सरफेस आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज़ माई सॉलिड। देन इसके बाजू में फिर वही चीज़ करेंगे, एक मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे एंड क्या कंसिडर करेंगे? स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। वेरी गुड। सो दिस इज़ द ए आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये तुम लोगों ने ए बनाया। अभी होता ये है कि जब कॉन्वेक्स मेनिस्कस की बात करो तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के केस में क्या होता है? कौन सा फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है? ऑब्वियसली इट इज़ एडेसिव फोर्स। तो जो कोहेसिव फोर्स मिलता है ना, वो कोहेसिव फोर्स कब मिलता है? सॉरी, एडेसिव फोर्स वीक होता है, कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है मर्क्यूरी के केस में। तो जो हमें जो एडेसिव फोर्स मिला AP, दैट इज़ लेस। एडेसिव फोर्स क्या है? लेस है कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स। सो अगर मैं कोहेसिव फोर्स कंसिडर करूँ तो कोहेसिव फोर्स हम लोग को कुछ इस तरह से मिलता है, अ लिटिल बिट मोर।
मिला, let's call it R. So you can directly say that AP is less than AR, and since AP is less than AR, now if I try to create a parallelogram, क्योंकि मुझे resultant बनाना है ना, so I get resultant something like this, that is resultant अभी कहाँ पे आ रहा है देखो, तो तुम्हारा जो रिजल्ट, अच्छा ये AP नहीं है, इसको AC बोला था हम लोगों ने, AC बोलते हैं क्योंकि रिजल्टेंट को R शो करना है ना मुझे, सो दिस इज AR. डू यू नोटिस वन थिंग, जब मैंने पहले टाइम रिजल्टेंट बनाया तो वो सॉलिड के अंदर जा रहा था, बट यहाँ पे जब रिजल्टेंट बन रहा है तो वो लिक्विड के अंदर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है, भूलना मत, बराबर. तो अभी क्या करना है, इस रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर फोर्स बनाना है, तो रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर फोर्स विल बी लाइक दिस, रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर विल बी लाइक दिस, लिटिल बिट टू द टॉप बनाते हैं. ओके, सो वी गेट समथिंग लाइक दिस. अच्छा ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है तो थोड़ा बहुत परपेंडिकुलर ही बना देते हैं. दिस इज़ द टेंजेंट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो फ्लूइड का सरफेस कैसे जाएगा, तो फ्लूइड का सरफेस ऐसे होगा, देखो ध्यान से, कैन यू सी, वी गेट दिस प्रोफाइल ऐसे टाइप में. ओके, तो अपना आर अगर और थोड़ा अंदर आता ना, मतलब आर थोड़ा और ऐसे क्रिएट हो जाता तो टेंजेंट और अच्छे से ऊपर बन जाता. तो यू कैन ड्रॉ थिंकिंग दैट, तो तुम लोग सी को और बड़ा कर सकते हो या तो पी को और छोटा कर सकते हो. तो पी को छोटा करने के बाद ऐसा डायग्राम बनेगा, फिर और थोड़ा अंदर आएगा और टी थोड़ा और ऊपर आ जाएगा. बट एट द एंड कंक्लूजन क्या है कि तुम लोग को कौन सा प्रोफाइल मिलता है, तुम लोग को मिलता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस. मिला कॉन्वेक्स मेनिस्कस. तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस में क्या तुम लोगों ने नोटिस किया, जो थीटा होता है वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज. And just for your knowledge, for Mercury this particular angle is 138 degree to 140 degree. Okay, so just for your knowledge, वैसे अपने पास टेबल है, आगे मैं बताता हूँ तुम लोगों को, टेबल है, नो इशू विद दैट. तो अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग. AP इज़ लेस देन AC, तो तुम लोगों को डायरेक्टली पता चल गया कि एडेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स है. तो अगर एडेसिव फोर्स लेस देन कोहेसिव फोर्स है तो क्या लिखोगे तुम लोग, लिक्विड्स विल, अच्छा मर्क्यूरी का एक प्रॉपर्टी है पता है तुम लोगों को, मर्क्यूरी किसी भी चीज़ को वेट नहीं करता. सो इसका मतलब यू हैव टू राइट दैट लिक्विड विल नॉट वेट ग्लास. ग्लास को कभी वो वेट नहीं करेगा, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, या फिर ग्लास बोलना ज़रूरी नहीं है, सॉलिड बोलते हैं तो चलेगा. तो वी कैन कॉल इट एज सॉलिड. ओके, ये हो गया. इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या बोला, Hg, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज मर्क्यूरी इन कॉन्टैक्ट विथ ग्लास. ये तो एक एग्जाम्पल हो गया अपना, बराबर. थीटा कितना होता है पता है मर्क्यूरी का, तो मर्क्यूरी थीटा देता है 140 डिग्री के आसपास. वेर एज केरोसिन विद ग्लास जो एंगल देता है ना, केरोसिन विद ग्लास का एग्जाम्पल, सो थीटा होता है उसका कुछ 26 डिग्री के आसपास, ये याद रखो. तो 26 तो एक्यूट ही हुआ ना, और इसका कितना हो रहा है 140, दैट इज़ नथिंग बट ऑब्ट्यूज. ओके, तो ये हुआ एग्जाम्पल. तुम्हारा नेक्स्ट केस करेंगे अभी जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का. तो जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या होता है पता है, तो जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए फिर से वही सरफेस कंसिडर करते हैं. ध्यान से देखना डायग्राम, ये लास्ट डायग्राम बनाऊंगा मैं. ओके, लेट्स से ये अपना बन गया, फिर वही चीज़ होगी, एक मॉलिक्यूल बनेगा, फिर उसके बाजू में उसका क्या आएगा, उसके बाजू में आएगा उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. बट होता ये है कि अगर मैं लिक्विड ले लूँ ऐसा जिसमें कोहेसिव फोर्स बहुत 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 वीक होता है कंपेयर टू द एडेसिव फोर्स, यू कैन निग्लेक्ट दैट पर्टिकुलर फोर्स. सो अगर मान के चलो मेरा सिर्फ और सिर्फ एडेसिव फोर्स आ रहा है, यू आर ओनली गेटिंग व्हाट, यू आर ओनली गेटिंग AP. सो लेट्स से यू आर गेटिंग व्हाट, AP. और रीज़न क्या है कि एडेसिव फोर्स is very very strong than cohesive force. Therefore cohesive force को क्या लिखते थे हम लोग, AC, can be therefore stronger, therefore AC can be
निगलेक्टेड। अरे बट अगर तेरा AC ही नहीं रहेगा तो रिजल्टेंट तो जो एडेसिव है वही आएगा, तो यही तेरा रिजल्टेंट होता है। अभी रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर हम लोग टेंजेंट निकालते हैं, तो टेंजेंट क्या हो गया, टेंजेंट नीचे की तरफ आएगा ना, डाउनवर्ड, तो ये बन गया तुम्हारा टेंजेंट। अभी देखो सरफेस ये था, टेंजेंट ये था, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0, बराबर ना, थीटा क्या बन रहा है, 0। सो या इसी तरह से तुम लोग को एंगल क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। सो यू कैन राइट दैट थीटा इज इक्वल टू 0। AC कैन बी निगलेक्टेड, देयरफॉर AP इज इक्वल टू R, है ना, एंड R को परपेंडिकुलर टेंजेंट बनता है। इसका एग्जाम्पल है वाटर इन कॉन्टैक्ट विथ क्लीन ग्लास। क्यों पता है, क्योंकि अगर डर्ट पार्टिकल होंगे ना तो तुम्हारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ना चेंज हो जाता है विथ क्लीन ग्लास। नाउ द फोर्थ कंडीशन दैट वी आर डूइंग इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एट 90 डिग्री, एंड दिस इज हाइपोथेटिकल कंडीशन। ओके, क्या बोला इसको, हाइपोथेटिकल। दैट मीन्स ऐसा तुम लोग को लिक्विड नहीं मिलेगा, दिस इज जस्ट अ थियरी एंड तुम लोग को इसको अंडरस्टैंड करना है। ओके, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो ध्यान से देखो। अभी मैंने ऐसा कंसिडर किया है कि ये तुम्हारा जो है ना, ये तुम्हारा एडेसिव फोर्स है और AC जो है वो कोहेसिव फोर्स है, एंड ड्यू टू सम रीज़न ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है ना AC, ओके, वो 45 डिग्री क्रिएट कर रहा है सॉलिड के साथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द डिफरेंट थीटा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये हुआ ना, T जो R के साथ बना है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना, दिस इज थीटा। सो थीटा 90 डिग्री बोला है, बट दिस पर्टिकुलर AC, व्हाट दिस पर्टिकुलर AC इज गिविंग मी, AC इज गिविंग मी एंगल एज थीटा, बराबर। सो व्हाट आई मीन टू से कि इफ AC is making 45 डिग्री विथ सॉलिड, तो इसका मतलब ये होता है कि जो AP का वैल्यू होगा वो AP का वैल्यू होता है AC डिवाइडेड बाय √2। ये चीज़ याद रखना, दिस इज अ शॉर्टकट। अगर AC 45 डिग्री मेक कर रहा है देन यू कैन से दैट AP इज इक्वल टू AC बाय √2। तो अगर ऐसी केस है तो तुम लोग को थीटा कितना मिलता है, 90 डिग्री। बट अगर ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा AP का वैल्यू इज ग्रेटर देन AC बाय √2 हो गया, है ना, AC बाय √2 से AP का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, मतलब एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा है, तो तुमको क्या मिलता है, तुमको एक्यूट मिलता है एंगल। एंड अगर AP का वैल्यू दैट इज एडेसिव फोर्स इज लेस देन द कोहेसिव फोर्स, जस्ट लाइक इन केस ऑफ मर्क्यूरी, तो तुमको एंगल क्या मिलता है, तुमको मिलता है ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। This reminded me Murphy's law. If anything can go wrong, it will go wrong. Because जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चालू करता हूँ तो कोई ना कोई आजू बाजू में आवाज़ चालू हो जाते हैं। तो अभी नेबर्स के कुकर का आवाज़ आप लोगों ने सुना होगा। आई हैव टू शट माई विंडोज़ कम्प्लीटली फॉर दैट। ओके, तो ये क्लियर हो गया, तो थीटा ऑब्ट्यूज हो गया और तुम लोग को ये सारी चीज़ें मिल गए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम लोग शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस देखने वाले। तो क्या करने वाले ना, बेसिकली अच्छे से समझ लो। हम लोग एक सॉलिड सरफेस लेने वाले हैं जिसके ऊपर हम लोग ड्रॉप्स डालेंगे, एंड वो ड्रॉप कैसे शेप लेंगे वो डिटरमाइन करेंगे। तो अगर तुम लोगों ने नोटिस किया तो यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, कैन यू सी दिस ओरिजिन, फॉर यू आई विल मेक इट इन रेड। नाउ कैन यू स्पॉट दिस ओरिजिन, ओके। तो अभी ध्यान से देखो, जो T1 है ना, T1 इट इज़ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। एक्चुअली उनको F1 बोलना चाहिए था बट उन्होंने T से डिनोट किया, बट स्टिल इट इज़ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इट इज़ नॉट सरफेस टेंशन, याद रखना। सो दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन कौन से इंटरफेस के बीच में आ रहा है ये, एक तो लिक्विड एंड सॉलिड, बराबर। सो आई कैन राइट दैट लेट T1 इक्वल टू फोर्स ड्यू टू surface tension between liquid and solid interface, liquid and solid interface, बराबर। अभी नेक्स्ट चीज देखो, क्या कैन यू सी T2, तो T2 में देखोगे ना तो सॉलिड और एयर के बीच में कॉन्टैक्ट है, लिक्विड के बीच कॉन्टैक्ट नहीं है। सो यू कैन राइट दैट T2 इज नथिंग बट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन solid and
air interface. Just like that, if I am talking about some other thing like T3 के बारे में बात करते हैं. So can you see T3 किसके बीच में आ रहा है? देखो, एक तो आ रहा है लिक्विड और एक तो आ रहा है एयर. So you can write that T3 is nothing but force due to surface tension between liquid and air interface. So basically I can adjust this thing, तो अपना जगह बच जाएगा थोड़ा बहुत, बाकी कुछ नहीं. तो ये सारे फोर्सेस आई होप तुम लोग को समझे. और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल मेड बाय T3 विद द हॉरिजॉन्टल. थीटा क्या है? एंगल मेड बाय T3 with horizontal. Now what I want you to do is that I want you to resolve this T3. So if you resolve this T3, it will have two component, right? एक component ऐसे आएगा और एक component ऐसे आएगा, है ना? थीटा loves cos. क्या बोला था मैंने? थीटा loves cos. So that means जो थीटा के नज़दीक का component हो जाएगा that will be equal to T3 cos theta. And this particular component, it will become T3 sin theta. Now for time being, let's ignore T3 sin theta because it will be balanced by the weight of the water droplet. But let us focus on the components that are present on the horizontal axis, that is T2, T3 cos theta and T1. So using conditions of equilibrium, we can directly say that ये जो T2 है ना, T2 उसको दो बंदे बैलेंस कर रहे हैं, एक T3 cos theta एंड एक T1. सो यू कैन राइट दैट T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 cos theta, और इन अदर वर्ड यू कैन राइट इट एज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 cos theta, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट cos theta इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3. तो ये मिल गया तुम लोग को एक फॉर्मूला जिसको यूज़ करके हम लोग कंडीशंस बनाने वाले हैं. अभी ध्यान से सुनो. पहला कंडीशन, ओके, सो लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन. इफ़ T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, मतलब ये यहाँ का वैल्यू इस पीछे वाले वैल्यू से बड़ा है, हाँ, एंड T2 माइनस T1 कंबाइंड इज़ लेस दैन T3. तो क्यों ना मैं कुछ वैल्यूज़ डाल के तुम्हारा समाधान करूँ, या फिर लेट्स चेक. T2 इज़ 5, T1 is 2. Is it satisfying our condition? T2 is greater than T1? Yes. Then what about T2 minus T1 less than T3? तो T3 का जो भी वैल्यू आएगा वो कुछ बड़ा होगा इन दोनों के डिफरेंस से. सो लेट्स से 6 लिया मैंने. सो दिस इज 5 minus 2, that is nothing but 3. 3 divided by 6 is nothing but 1 by 2, half, right? So cos थीटा कितना आया? हाफ. तो अगर मैं कैल्सी पे अभी cos थीटा इज इक्वल टू हाफ डालू और थीटा निकालने की कोशिश करूँ, दैट इज थीटा इज cos इनवर्स ऑफ हाफ, आई रियलाइज कि जो भी मेरा एंगल आएगा ना वो एंगल आएगा एक्यूट. क्यों आता है पता है एक्यूट? क्योंकि cos थीटा क्या आता है? सिंस cos थीटा इज पॉजिटिव देयरफॉर थीटा इज एक्यूट. तो मुझे एंगल जो मिलता है वो छोटा, मतलब मुझे ये वाला डायग्राम मिलता है ऐसे केस में. ये वाला डायग्राम दिखा है? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बन रहा है? छोटू सा बन रहा है कि नहीं? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर केस, सेकेंड वाला. तो सेकेंड केस में मैं क्या करने वाला हूँ? मैं T2 इज़ लेस दैन T1 लेने वाला हूँ, ओके. एंड सेकेंड कंडीशन तो वो सेम ही रहेगा जिसमें मैंने बोला था ना, दैट इज T2 माइनस T1. सो यू कैन से दैट T2 माइनस T1 इज लेस दैन T3. नाउ व्हाट यू गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज दैट तुझे जो भी आंसर आएगा ना वो निगेटिव आएगा. फॉर एग्जांपल वही वैल्यू पुट करते हैं. याद करो फॉर्मूला क्या था cos थीटा का? cos थीटा का फॉर्मूला था T2 माइनस T1 अपॉन T3, बराबर. बट अभी वैल्यूज चेंज हो गए, T2 2 हो गया, T1 5 हो गया और T3 6 था. तो अभी आंसर क्या आएगा? -3/6. तो आंसर आएगा -हाफ. तो जो तेरा cos थीटा है वो cos थीटा हो जाएगा निगेटिव. सो यू कैन से दैट इट इंडिकेट्स दैट, अच्छा यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, ये तो अपने को पता है. सो वी कैन राइट दैट, थोड़ा बड़ा हो गया, इफ T2 इज लेस दैन T1 एंड T2 माइनस T1 is less than T3, you can say that cos theta is negative, and if cos theta is negative, therefore you can conclude that जो थीटा मिलेगा वो मिलेगा
ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब ये कंडीशन दिख रहा है, कैसे मिल रहा है तुम लोग को थीटा, ऐसे बड़ा मिल रहा है ना एंगल, तो ये कंडीशन मिल गया। अभी बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। तो थर्ड कंडीशन में अभी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, T2 ग्रेड या T1 ग्रेड नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ इतना बोलेंगे कि T2 माइनस T1 का जो भी वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू T3। तो तुम्हारा फॉर्मूला याद करो अभी, cos थीटा इज समथिंग लाइक दिस, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3। ये और ये इक्वल हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। व्हाट इज cos थीटा 1 आने के बाद एंगल कितना आता है थीटा, एंगल आता है 0, बराबर ना, क्योंकि cos 0 इज 1 राइट। सो यू कैन से दैट कि cos थीटा का वैल्यू कितना आया 1, और cos थीटा का वैल्यू 1 आया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर इंडिकेट कि थीटा ऑलमोस्ट 0 होता है, नॉट एक्जैक्टली 0, ऑलमोस्ट 0। सो बेसिकली यू गेट वेरी 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 फ्लैट ड्रॉप। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ वाला केस जो इम्पॉसिबल केस है, उसका रीज़न समझो क्यों। तो मैंने कंसिडर किया अभी जितने भी केस देखे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि T2 माइनस T1 या तो इक्वल हो सकता है या तो लेस हो सकता है, बट समझो गलती से उसका वैल्यू ग्रेटर देन T3 निकला। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग कि cos थीटा का वैल्यू कुछ ऐसे आएगा, ऊपर आएगा 5 माइनस 2 और नीचे आएगा 1। व्हाट इज 5 माइनस 2, 3, बराबर ना, T3 लेस आना चाहिए ना ऊपर वाले से, तो 3 जो है वो 1 से ज़्यादा हो गया, और cos थीटा का वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1। That's why you conclude one very interesting thing, that is since cos theta becomes greater than 1, this case is impossible। ना, या फिर ऐसे लिखते हैं, it is impossible to form drop, या फिर ड्रॉप बनेगा ही नहीं, तुरंत वो पूरा ऐसा फ्लैट हो जाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर्म ड्रॉप। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है। तो पहली चीज़, नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। लिक्विड कौन सा है, सॉलिड कौन सा है। मर्क्यूरी के लिए एंगल अलग होता है, पता है, मर्क्यूरी के ड्रॉप्स है ना बहुत इफेक्टिवली बनते हैं, मतलब लिटरली तुम लोगों ने पानी के ड्रॉप देखे ना, सो यू गेट समथिंग लाइक दिस, you see something like this, but mercury के drop are like this। can you see the major difference? एकदम प्रॉपर ड्रॉप बनते हैं, क्यों, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड द सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। लाइक रफ सरफेस में तुम लोग को कुछ अलग वेरिएशन मिलेगा। नेक्स्ट, इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द लिक्विड चेंजेस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्वियसली। तुम लोग को पता है इंटरेस्टिंग चीज़, तो अगर तुम लोगों ने ना डस्ट पार्टिकल कंसिडर किया ना मर्क्यूरी में, तो मर्क्यूरी के ड्रॉप्स फॉर्म नहीं होते जब तक तुम पूरा का पूरा डस्ट सेपरेट नहीं करोगे ना, तब तक ड्रॉप फॉर्म होगा ही नहीं। थर्ड, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। एनी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, बराबर ना, क्योंकि मॉलिक्यूल का कोहेसिव फोर्स चेंज हो जाता है, और कोहेसिव फोर्स चेंज तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज तो थीटा चेंज। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो मतलब हम लोग बहुत सारे फैक्टर स्टडी करेंगे और इस फैक्टर का सरफेस टेंशन पे क्या असर पड़ता है वो देखेंगे। तो पहला फैक्टर सॉल्यूबल सब्स्टिट्यूट, सॉल्यूबल जो भी हम लोग ऐड करने वाले हैं वो चीज़ें देखेंगे। तो सॉल्यूबल में एग्जांपल क्या है, NaCl, जैसे मिक्स हो जाता है वो चीज़ें, जैसे ही हम लोग NaCl ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो भी गाँव का पानी होता है ना, वो गाँव का पानी से कपड़े धोना बहुत टफ होता है, बिकॉज उसमें ना बहुत सारे अमाउंट में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, नॉट ओनली NaCl बट अदर काइंड ऑफ सॉल्ट्स ऑल्सो। या फिर खारे पानी से कपड़े धोना बहुत टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि वो सरफेस टेंशन इंक्रीज कर देता है। सरफेस टेंशन इंक्रीज तो पानी धागों के अंदर ही नहीं जा पाता, पानी धागों के अंदर नहीं जा पाता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सो व्हाट डू वी डू इन दैट केस? वी कैन ईदर हीट दैट पर्टिकुलर लिक्विड so that surface tension reduces, or we can use detergent। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी कभी जब ज़्यादा स्टेन्स होता है ना, तो आपके घर पे मम्मी या फिर जो भी कपड़े वॉश करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं हम लोग कि गर्म पानी लेते हैं और गर्म पानी में कपड़े डुबोते हैं। तो गर्म पानी का पर्पस क्या होता है? हम लोग ऐसे, मतलब आपकी मम्मी भी देखो यूज़ कर रही है बट साइंस पता नहीं उसके पीछे का, तो आप मम्मी को बोलना ये वीडियो देखने के बाद, मम्मी पता है आप डिटर्जेंट यूज़ करते हो तो क्या होता है, या फिर आप गर्म पानी क्यों यूज़ करते हो? तो गर्म पानी से सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। क्यों? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं ना, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है तो कोहेसिव फोर्स कम हो जाता है, और सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स के ऊपर तो डिपेंड है। सो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? कम। तो मम्मी को बोलना, देखो मम्मी आप जब गर्म पानी यूज़ करते हैं ना तो उसके वजह से ये चीज़ हो जाती है। ये हुई एक बात।
नेक्स्ट चीज, सॉल्युबल सब्सटेंस बोला मैंने, तो सॉल्युबल सब्सटेंस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं बट वो मिक्स होते हैं ना प्रॉपरली, थॉरोली मिक्स होते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि कोहेसिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है। कोहेसिव फोर्स इंक्रीज हुआ, खत्म, सरफेस टेंशन इंक्रीज। व्हाट अबाउट स्पैरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंसेस? सो इन प्रीवियस बुक उन्होंने फिनॉल वगैरह नहीं दिया था, स्पेसिफिकली उन्होंने अल्कोहल बोला था। सो वेन एवर आई यूज टू टीच दिस पर्टिकुलर टॉपिक, देर यूज टू बी जोक लाइक दैट कि अगर हम लोग अल्कोहल मिक्स करेंगे पानी में तो क्या होगा एंड ऑल दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली फिनॉल बोला है। फिनॉल या डिटर्जेंट स्पैरिंगली सोल्यूबल है, स्पैरिंगली मीन्स पार्शियली सोल्यूबल, सो दे आर नॉट गेटिंग कंप्लीटली सोल्यूबल इनसाइड। सो अगर कंप्लीट सोल्यूबल नहीं है तो कुछ पार्टिकल्स रहेंगे पार्टिकल्स के, और जब एक्सेसिव पार्टिकल्स आते हैं किसी सिस्टम में तो उसका एडेसिव फोर्स बढ़ता है ना, और कोहेसिव फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर कोहेसिव फोर्स कम हो गया तो सरफेस टेंशन क्या होगा, कम। यही तो तेरे को चाहिए, यही तो रीजन है डिटर्जेंट ऐड करने का। फिर हम बात करते हैं इनसॉल्युबल इंप्योरिटी और डस्ट पार्टिकल, जो मतलब बेसिकली डिजॉल्व ही नहीं होता। डस्ट इज अ बेस्ट एग्जांपल, या फिर कोई भी तुम लोग इनसॉल्युबल इंप्योरिटी ले लो, पत्थर डालो, कुछ भी डालो, क्या फर्क होने वाला है उससे? क्या होने वाला है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होने वाला है। समझ रहे हो? पत्थर मत डालो, पार्टिकल लेवल पे सोचो। तो अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि कोहेसिव फोर्स कम होगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर का तो मैंने ऑलरेडी बताया तुम लोगों को कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डिस्टेंस बढ़ता है मॉलिक्यूल का, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा। बट देयर आर एक्सेप्शंस, लाइक मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम, जिसमें क्या होता है, जिसमें मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम में जब तुम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो उसका सरफेस टेंशन बढ़ता है। तो ये एक्सेप्शन है, ये इसका उल्टा होता है। सो इन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम विथ increase in temperature, with increase in temperature surface tension, या फिर you can, हाँ yes, you can say surface tension increases। और इसका एक रीज़न है कि मोल्टन कॉपर जितना तुम लोग मेल्ट करते जाओगे उतना वो लिक्विफाई होता जाएगा। ओके, तो एक पर्टिकुलर स्टेज में जब वो लिक्विफाई होना चालू हो जाता है, पहले देखो वो सॉलिड था, जस्ट मेल्ट करना स्टार्ट किया तो भी वो लाइक क्लोज टू द सॉलिड था। अभी जितना ज़्यादा मेल्ट करोगे इट बिकम्स क्लोज टू द लिक्विड। एंड कोहेसिव फोर्स किस में ज़्यादा, मतलब सॉरी सरफेस टेंशन किस में देखने को मिलता है, लिक्विड्स में। दैट इज़ वाई मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम में क्या होता है कि अगर तुम लोग विजुअलाइज करोगे मोल्टन कैडमियम का, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। बट दिस पर्टिकुलर थिंग डज नॉट स्टॉप ओवर हियर। इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट इट, सर्च ऑन गूगल स्कॉलरली, जहाँ पे उन्होंने लिटरली एक्सपेरिमेंटेशन किए हैं, बहुत चीज़ें सर्च की है, जहाँ पे वो बताते हैं कि एग्जैक्ट मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम कैसे होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। एंड इफ़ इट इज़ मच लाइक बाउंसिंग जा रहा है सर के ऊपर, छोड़ दो यार, अभी नहीं बना है वो चीज़ तुम्हारे लिए, आगे पढ़ो। But if you are interested, go search for that particular thing. Okay, now just like in previous session, you should be familiar with this fact that the no knowledge is wasted. Okay, so initially I have introduced in this particular question a formula जो पहले के 12th के बुक में था, अभी उन्होंने उसको एलिमिनेट किया है। Now I want you to search for that book, किसी से ले लो, किसी को पूछो, and find a sum based on this particular formula. Okay, and solve that particular sum. Next, many objects floats on water due to surface tension, but objects having less density floats on the basis of some other theory. मतलब देखो, surface tension की वजह से भी चीज़ें float होती है और less density की वजह से भी float होती है, but less density वाली चीज़ों को float होने में कौन help करता है, उसके बारे में ढूंढो। Next thing is that, have you ever heard about interface tension? मतलब जैसे सरफेस टेंशन है वैसे कुछ है इंटरफेस टेंशन। इफ नॉट, मेक श्योर टू विजिट google.com. Okay, see you in next session guys. Bye bye.